سندھ کے مختلف شہروں میں طوفانی بارش، آفت زدہ شہروں کی حالت مزید بگڑ گئی۔ حیدرآباد میں بارش جاری، انتظامیہ کا کہیں پتہ نہیں، شہری ڈوب رہے ہیں، گھروں میں پانی بھر گیا۔ وفاقی وزیر بجلی آئے اور بجلی بن کر غائب ہو گئے۔ سانگڑ میں کئی دیہات کا زمینی راستہ منقطع، متعدد گھر گر گئے۔ اسکول تباہ، شہری اپنی مدد آپ کے تحت پانی کی نکاسی میں مصروف۔ نواب شاہ میں بھی سڑکیں اور گلیاں ندی نالوں کا منظر پیش کرتی رہیں۔ ضلعی انتظامیہ غائب۔ دادو میں بارش نے تباہی مچا دی، سینکڑوں دیہات زیریاب، ہزاروں ایکڑ فصلیں تباہ۔ خیرپور میں کئی مکانات اور اسکول متاثر۔ ٹنڈو محمد خان میں بھی نظام زندگی مفلوج۔ کندکوٹ میں نکاسی آب نہ ہونے پر شہری مشتعل۔ انڈس ہائی وے پر احتجاج۔ جیکب آباد، سکھر اور روہڑی میں مختلف حادثات میں 6 افراد جاں بحق۔ سیلاب سے تباہی، متاثرین کی دہائی، جہاں انتظامیہ نہیں وہاں اے آر وائی نیوز متاثرین کی آواز بن گیا۔ شہداد کوٹ اور گرد و نواح میں موسلادھار بارش سے شہر کی سڑکیں اور نشیبی علاقے زیرآب۔ خیموں اور کھلے آسمان تلے بیٹھے متاثرین کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا۔ ٹنڈو الیار میں بھی دیہی علاقوں میں آبادکاروں کو کروڑوں روپے کا نقصان۔ پورا سندھ دریا بن گیا، 1 کروڑ لوگ بے گھر ہو گئے، 300 سے زائد اموات اور 15 لاکھ گھر تباہ ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی مخیر حضرات سے متاثرین کی مدد کے لیے آگے آنے کی اپیل۔ کہتے ہیں سندھ میں 2010 سے کہیں زیادہ تباہی ہے، ہمارے پاس خیمے ختم ہو گئے، 10 لاکھ ٹینٹس کی ضرورت ہے، پکا ہوا کھانا پہنچانے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ سندھ میں معمول سے 350% زائد بارش ہوئی۔ کراچی میں وقفے سے برسات، باران رحمت انتظامی نااہلی سے زحمت بن گئی، سڑکوں کا برا حال، پانی جمع ہونے سے ٹریفک کی روانی متاثر، بلدیاتی عملہ غائب، شہری اپنی مدد آپ کے تحت نکاسی آب میں مصروف۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس کی سڑک پر تیسری بار گڑھا پڑ گیا۔ دیر بالا میں 5 بچے سیلابی ریلے میں بہہ گئے، لاشیں نکال لی گئیں، بچے اسکول سے چھٹی کے بعد گھر جا رہے تھے۔ ملک بھر میں مانسون کا ایک اور سپیل، سیلاب متاثرین کی مشکلات مزید بڑھ گئیں۔ بلوچستان اور جنوبی پنجاب کے ندی نالوں میں طغیانی، رجحان، فاضل پور اور جام پور میں سیلابی صورتحال۔ رود کوہی سیم نالے کا پل بہہ گیا۔ رفیق آباد روڈ پر حفاظتی بند میں شگاف۔ ڈیرہ بگٹی میں ڈکوخ ڈیم ٹوٹنے کا خدشہ، لوگوں کی نقل مکانی۔ لسبیرا میں بیلا پل ٹوٹ گیا، ٹریفک معطل۔ الیکشن کمیشن کا کراچی میں بھی بلدیاتی انتخابات ملتوی کرنے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق فیصلہ الیکشن کمشنر سندھ اور ضلعی انتظامیہ کی رپورٹس پر کیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے متعلقہ اداروں سے رپورٹ طلب کی تھی۔ الیکشن کمیشن حیدرآباد ڈویژن میں انتخابات پہلے ہی ملتوی کر چکا۔ کراچی اور حیدرآباد ڈویژن میں بلدیاتی انتخابات 28 اگست کو ہونے تھے۔ چاہتے ہیں پاکستان کے فیصلے پاکستان میں ہوں، کسی اور ملک کو ہمارے بارے میں فیصلوں کا کوئی اختیار نہیں ہونا چاہیے۔ وقت آ گیا ہے پاکستان کو حقیقی آزادی دی جائے۔ عمران خان کا ہری پور میں پی ٹی آئی کے پاور شو سے خطاب، کہا اب کوئی ملک ہمیں اپنی جنگ میں نہیں دھکیل سکتا۔ دھمکی دی گئی ہماری جنگ میں شامل نہیں ہوئے تو پاکستان کو تباہ کر دیں گے۔ کاش میں اس وقت ملک کا سربراہ ہوتا تو امریکیوں کے آگے گھٹنے نہ ٹیکتا۔ تحریک آزادی میں سب سے بڑا کردار نوجوانوں نے ادا کیا۔ نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز اور رانا ثناءاللہ، خواجہ آصف سمیت دیگر لیگی رہنماؤں کے خلاف غداری کا مقدمہ درج کیا جائے۔ تحریک انصاف میاں والی کے ضلعی صدر نے ڈی پی او کو درخواست دے دی۔ موقف اپنایا کہ لیگی رہنماؤں نے ٹی وی پر پاکستان کی عدلیہ کو دھمکیاں دی، خوف و ہراس پھیلایا۔ چیف سیکرٹری پنجاب اور کمشنر لاہور کو بھی دھمکیاں دی گئیں۔ ایس ایچ او کو مقدمے کے اندراج کا حکم دیا جائے۔ رانا ثناءاللہ کے خلاف اندراج مقدمہ کے لیے راول پنڈی کے تھانہ گجر خان میں درخواست دے دی گئی۔ درخواست گزار کے مطابق رانا ثناءاللہ نے ٹی وی پروگرام میں عدلیہ کو دھمکیاں دی، قانون کے مطابق کارروائی کی جائے۔ جوڈیشل میجسٹریٹ نے شہباز گل کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کر دی، جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ ملزم کے وکیل کا کہنا تھا 4 موبائل فونز پولیس برآمد کر چکی، اب کون سے موبائل کی تلاش ہے؟
स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ अपनाया कि अभी मजीद कुछ सवालात के जवाब दरकार हैं। मरकजी मोबाइल की बरामदगी बाकी है, पॉलीग्राफिक टेस्ट कराना है। यह भी हो सकता है कोई मटेरियल ना मिला तो तफ्तीशी अफसर डिस्चार्ज रिपोर्ट भी बना दे। अदालत में पेशी से कबल पुलिस शहबाज गिल को पिम्स लेकर गई, मेडिकल टेस्ट कराया गया। कानूनी टीम से मुशावरत के बाद इमरान खान का कल इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में पेश होने का फैसला। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में दरख्वास्त से जमानत दायर की जाएगी। इमरान खान का खिताब बराह रास्त नशर करने पर पाबंदी, सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त अली जैदी ने दायर की, मौक़िफ़ अपनाया कि बराह रास्त खिताब पर पाबंदी आईन और कानून के खिलाफ वर्जी है। पैमरा नोटिफिकेशन कल अदम करार दिया जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान की लाइव तकारीर पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर दलाइल तलब कर लिए। पंजाब हुकूमत ने 25 मई के वाक़यात पर पीटीआई कारकुनों पर दर्ज मुकदमात खारिज कर दिए। वज़ीर दाखिला हाशिम डोगर कहते हैं पुलिस को सबूत मिल गए हैं कि तमाम पर्चे झूठे और सियासी बुनियादों पर दर्ज किए गए। मुलव्वस अफसरान के खिलाफ इंक्वायरियां लाजमी मुकम्मल की जाएंगी। इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई तो रिस्पॉन्स हम नहीं अवाम देंगे। एक करोड़ 70 लाख सार्फिन से फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट चार्ज खत्म कर दिया। 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को रिलीफ मिलेगा। खुरम दस्तगीर की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। तमाम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में जिद्दत लानी है। आइंदा साल गर्मियों से कबल लोड शेडिंग पर काबू पाना है। बिजली चोरी, ओवर बिलिंग मामलात पर के इलेक्ट्रिक से दो हाथ होने हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा कतर। दीवान अमीरी पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल। अमीर कतर ने खुशामदीद कहा। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमीर कतर से मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म चेयरमैन कतर बिजनेसमैन एसोसिएशन और CEO कतर एयरवेज से भी मिलेंगे। वज़ीर आज़म का दोहा स्टेडियम का दौरा। बारिश और सैलाब से रेलवे ट्रैक और तनसीबात बुरी तरह मुतासिर। सखर कोयटा सेक्शन के बेशतर मकामात पर रेलवे ट्रैक बह गया। कराची, कोटरी, कोयटा, सखर, दादू, खैरपुर, नवाबशाह के बेशतर मकामात पर कई किलोमीटर तक रेलवे ट्रैक से रेयाब। ट्रेन की आमदोरफ्त में 30 घंटे ताखीर। कई ट्रेनें मनसूख कर दी गई। पैमरा केबल ऑपरेटर से मुतालिक इख्तियारात क्यों इस्तेमाल नहीं कर रहा? चूहा गुजर गया, बिल्ली गुजर गई जैसे बहानों की आड़ क्यों ले रहा है? ARY न्यूज़ बहाल न कराने पर चेयरमैन पैमरा और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत केस में सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स। तलबी के बावजूद चेयरमैन पैमरा पेश न हुए। ARY न्यूज़ के वकील बैरिस्टर अयान मेमन बोले, अदालती हुक्म के सामने पैमरा के रेगुलेशंस की अहमियत नहीं। चेयरमैन पैमरा के वारंट जारी किए जाएं। अगर पैमरा अपना रेगुलेटरी किरदार अदा नहीं कर सकता तो इसे बंद कर देना चाहिए। पैमरा के वकील ने अदालत को बताया कि अदालती हुक्म पर अमल दरामद के लिए केबल ऑपरेटर्स को 3 सर्कुलर जारी कर चुके, अब शो कॉज नोटिस जारी करेंगे। समाअत कल तक मुलतवी। सिंध हाई कोर्ट के फैसले के बाद KP हुकूमत का बड़ा इकदाम। केबल ऑपरेटर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को ARY न्यूज़ की फौरी बहाली के अहकामात। कहा गया कि डिविजनल कमिश्नर्स और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स पर ARY न्यूज़ की बहाली यकीनी बनाएं। इंतजामिया चैनल की नशरियात को किसी भी किस्म की रुकावट के बगैर यकीनी बनाएं। गुंडागर्दी, पैमरा गर्दी नामंजूर। ARY न्यूज़ की बंदिश के खिलाफ सहाफियों के नारे। PFUJ का मुल्क गिर यौम स्याह। कराची प्रेस क्लब पर बड़ा मुजाहरा। सुपरस्टार हुमायूं सईद की भी शिरकत। मुल्क के दीगर शहरों में भी ARY न्यूज़ की बंदिश के खिलाफ रैलियां और मुजाहरे। ताजरों, मजदूरों, वकला, सिविल सोसाइटी और सियासी कारकुनों का भी ARY न्यूज़ से इजहार यकजहती। सदर PFUJ अफजल भट्ट कहते हैं, आज शाम तक ARY न्यूज़ की नशरियात बहाल न हुई तो दूसरे मरहले में कराची से पिंडी तक मार्च होगा। खदशात दूर करने के बजाय ओवरसीज के वोट का हक खत्म करना दुरुस्त नहीं। धांधली रोकने के लिए कमीशन इकदामात का अदालती जायजा लिया जा सकता है। क्या धांधली के खदशात पर इलेक्शन ही ना कराया जाए? सुप्रीम कोर्ट के ओवरसीज के वोट का हक खत्म करने के खिलाफ शेख रशीद की दरख्वास्त पर रिमार्क्स। जस्टिस एजाजुल अहसन बोले, जाली वोट और धांधली तो यहाँ भी होती है। इलेक्शन कमीशन धांधली रोकने के लिए अपने इख्तियारात इस्तेमाल क्यों नहीं करता?
बिजली के भारी भरकम बिल दहलाने लगे दिल। जायद बिलिंग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया, बिलों में इनकम टैक्स वसूल करना डबल टैक्स के बराबर है। फ्यूल एडजस्टमेंट किस फार्मूले के तहत लगाया जा रहा है, आवाम को कुछ इल्म नहीं। अदालत हुकूमत को रिलीफ फराहम करने का हुक्म दे। इमरान खान के दौरे हुकूमत में सी पैक पर काम मुतासर नहीं हुआ, गलत मालूमात फैलाई गई। कराची में तैनात चीन के कौंसल जनरल ली बिजियान कहते हैं कि सी पैक मंसूबों में ताख़ीर की वजह कोरोना वबा और सिक्योरिटी की सूरत हाल थी। अमरीका सुपर पावर है, चीन उसकी जगह नहीं ले रहा, ऐसा मवाजना करना दुरुस्त नहीं। पाकिस्तान के खिलाफ ट्विटर मुहिम के ताने बाने खुलने लगे। ट्विटर सिक्योरिटी चीफ ने भारत और ट्विटर इंतजामिया की मिलीभगत का भांडा फोड़ दिया। आलमी मीडिया के मुताबिक भारत ने ट्विटर इंतजामिया को भारतीय हुकूमत का एजेंट पेरोल पर रखने पर मजबूर किया। ट्विटर सिक्योरिटी चीफ ने मामला अमरीकी रेगुलेटर्स के साथ उठा दिया। मुआहदे के तहत भारत को हसास यूजर के डेटा तक रसाई मिल गई। ट्विटर इंतजामिया की भी तस्दीक, कहा भारत ट्विटर पर गैर कानूनी इक़दामात और कंटेंट में मुलव्वस है। इसराइल तुर्किया सिफारती ताल्लुकात की बहाली का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि फ़लस्तीन की आज़ादी और खुद मुख्तारी पर कोई समझौता किया जाएगा। सदर एर्दोआन की फ़लस्तीनी हम मनसब महमूद अब्बास से गुफ्तगू, कहा तुर्किया फ़लस्तीन की आज़ाद रियासत के क़याम की जिद्दोजहद में बराबर का शरीक है। दो बूंद पाकिस्तान की खातिर। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में पोलियो मुहिम का तीसरा रोज। पोलियो वर्कर्स घर घर जाकर बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने में मसरूफ। टीवी, रेडियो और फिल्म के अदाकार जमशेद अंसारी को मद्दाहों से बिछड़े 17 बरस बीत गए। जमशेद अंसारी की यादगार सीरियल्स में अंकल उर्फी, अनकही, तन्हाइयाँ, हाफ प्लेट, झरोके, जेर जबर पेश और घोड़ा घास खाता है शामिल हैं। भारत को हराना है, एशिया कप उठाना है। शाहीनों के दुबई में डेरे। कौमी टीम की आईसीसी क्रिकेट एकेडमी में ट्रेनिंग। मेगा इवेंट का आगाज हफ्ते से होगा। ग्रीन शर्ट्स का इतवार को पहले मैच में भारत से टकरा होगा। एशिया कप में शाहीन आफरीदी की कमी शिद्दत से महसूस होगी। वो दुनिया के टॉप 3 बॉलर्स में से एक हैं। कौमी टीम के साबिक कप्तान और सदर कराची किंग्स वसीम अकरम का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। बोले पाकिस्तान के मिडल ऑर्डर के बारे में खदशात हैं। बाबर आजम और रिजवान का किरदार बहुत। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।